Assalamu alaikum, dear students. Today's lecture is going to be about reading strategies, and this lecture is primarily meant for those students who are doing BS in English from Punjab University affiliated colleges, and they're in the fourth semester. So let's start. You know very well that there is academic reading and writing, and there is the advanced academic reading and writing. And the academic reading and writing that you are studying in this course is the advanced academic reading and writing. So in today's lecture, we are going to talk about the different reading strategies that we can apply or we can adopt in order to read a text critically. So here are 15 strategies that have been adopted, and please remember that keep in mind that I have consulted this book, and this is these all the books that I consult in order to deliver my lectures. These are the books are written by foreign authors, and these are the recommended books from the Punjab University. So these are the 15 strategies that we can adopt in order to read a text critically, in order to you can say do the critical analysis of the text. The first thing is annotating, then taking inventory, then outlining, then you can say summarizing, then paraphrasing, then synthesizing, then contextualizing. If you can say look at the course outline of yours, you can easily find these were like summarizing, paraphrasing, and synthesizing. Then you can say contextualizing, exploring the significance of figurative language, look for the patterns of opposition, reflecting the your reflecting on the challenges to your beliefs, comparing and contrasting related readings. And then you can say evaluating the logic of an argument, recognizing logical fallacies. So you can say that these are the different strategies, and these are that you can adopt in order to analyze a text critically. So first of all, we will move to annotations. You can see that what we have written annotations mean. You can see annotations are the marks, underlines, highlights, and comments you make directly on the page as you read. For example, if you are reading a novel, if you are reading a drama, or if you are reading a text of if you are reading any text, whatever text it may be, when you can say you develop your own understanding, and you write that understanding. You can say on the margins or on the blank, you can say spaces that are left on the pages. So these are called annotations. So annotations are very helpful. You can say that these are the very initial notes that you are preparing for the understanding of the text. So these are called annotations. And annotation in Urdu we say हाशिया. उर्दू में हम अक्सर कहते हैं कि हाशिया. हाशिया का मतलब ये होता है कि जब हमको टेक्स्ट पढ़ते होते हैं तो हम अपनी जो अल्फाज को अंडरलाइन कर लेते हैं, उनको हम इंसर्कल कर लेते हैं, फिर उनकी जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हैं, यानी वाट एवर अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव डेवलप फ्रॉम दोज वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो हम उसको हाशिए के सूरत में यानी साइड पे छोटे छोटे करके लिख लेते हैं. ठीक है, ये एक तरीका होता है, इसको मैं एनोटेशन कहते हैं. अब इन द प्रेजेंट टाइम यू नो वेरी वेल दैट बुक्स आर अवेलेबल इन PDF, एंड बुक्स आर आल्सो अवेलेबल इन ऑनलाइन एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स. तो आजकल ज़ाहिर सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम इसको यानी अपने PDF के अंदर ही हम उसको एनोटेट कर लेते हैं, हम उसके अंदर ही अपने जो है एनोटेशन के नोट्स बना लेते हैं. तो ये एनोटेशन कहलाती हैं. ये पहला तरीका होता है, और ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं. मैं भी ऐसा करता हूँ जब मैं कोई ड्रामा पढ़ता हूँ, कोई चीज़ पढ़ता हूँ, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है उसको साथ में हम नोट कर लेते हैं. तो इसी तरह देखें कि यानी ये एनोटेशंस को कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे नोट करना वो ज़्यादा इजी हो जाता है. इसमें आप ज़्यादा कलर यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके के साथ आप एनोटेट कर सकते हैं. तो ये एनोटेशन होता है, हम इस तरीके के साथ हम करते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रेटजी. तो इसको आप आगे देख सकते हैं. इसके बाद देखें ये मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे, यू नो वेरी वेल, आपने फर्स्ट ईयर में इनकी एक स्पीच पढ़ी थी, आई हैव अ ड्रीम. ये उन्हीं की थी ना, क्योंकि अमेरिका में जो सिविल राइट्स मूवमेंट चली थी, जो ब्लैक लोगों के हकूक़ की हिमायत में चली थी, उसके लीडर थे. तो उन्होंने जो था ना ये जेल के अंदर से एक लेटर लिखा था. ये देखिए लेटर है. तो अब लेटर इसके उन्होंने किया, उन्होंने ये प्रैक्टिकल सैम्पल आपको बताया है इस किताब के जो मुसन्निफ़ीन हैं जिन्होंने लिखी है. उन्होंने बताया कि इस तरीके से एनोटेशन की जा सकती है. यानी मिसाल के तौर पर जैसे देखिए, अब ये उन्होंने पहले तो उसको पैराग्राफ में डिवाइड किया कि यानी फर्स्ट पैराग्राफ है. अब जिसके बाद देखेंगे यानी वाइड मॉडरेट, ये उन्होंने अंडरलाइन किया. तो अंडरलाइन करने के बाद यानी यहाँ .1 लिखा है, और इसके बाद इसे एनोटेट कर ले. यानी जो रीडर ने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है उसको साथ साथ वो लिखते जा रहे हैं. ये देखें. अब इसके बाद उन्होंने देखें ये लगाया हुआ है, इसके साथ निशान लगा के ये बताया है कि इस पैराग्राफ के अंदर ये बात की जा रही है. ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. यानी अपना पर्सनल स्टाइल होता है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं. तो ये तरीका उन्होंने बताया कि इस तरीके से आमतौर पर किया जा सकता है. जैसे देखें ये होते हैं एनोटेशन. एनोटेशन की प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल आपको मिल रही है. दिस इज कॉल्ड एनोटेशन.
ठीक है। अब ये देखें सारे का सारा उन्होंने एनोटेट किया हुआ है, यानी कितने अच्छे तरीके से। देखिए कुछ अंडरलाइन किए हैं, कुछ उन्होंने एंड सर्कल किए हैं। या अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मिसाल के तौर पे कि आप कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, जो कोई कोटेशन होगी से हम उसे एंड सर्कल कर लेंगे। आप ऐसा कि आप कहते हैं कि कोई नाउन फ्रेज होगा, कोई प्रेपोजिशन फ्रेज होगा, कोई की वर्ड होगा, उसे हम अंडरलाइन कर लेंगे या उसे हम हाईलाइट कर लेंगे। मुख्तलिफ तरीके होते हैं उसको करने के, तो आप कोई भी अडाप्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये कोई फिक्स टूल नहीं है, लेकिन ये एक तरीका उन्होंने बताया कि इस तरीके से किया जा सकता है, बड़ा अच्छा तरीका है। इसके बाद देखें द सेकंड थिंग इज टेकिंग इन्वेंट्री। अब आपने एनोटेशन तो ले ली, ठीक है। अब एनोटेशन के बाद क्या होगा, टेकिंग इन्वेंट्री हेल्प्स यू टू एनालाइज एनोटेशन फॉर डिफरेंट पर्पजेज, ठीक है। जैसे देखें अब आपने एनोटेशन तो तैयार कर ली थी ऊपर, अभी हमने मिसाल ली है। अब एनोटेशन को आपने यूज़ करना है, किसके लिए यूज़ करना है, मतलब मिसाल के तौर पे कि आपने किसी कैरेक्टर के बारे में बात करनी है, आपने किसी मेन थीम के बारे में बात करनी है, आपने उसमें सिंबल निकालने हैं, आपने उसे इमेजरी निकालनी है, आपने उसके अंदर अपोजिशन के पैटर्न निकालने हैं, आपने उसके अंदर कंपेयर एंड कंट्रास्ट निकालने टेक्निक, आपने उसके अंदर जो होता है ना यानी बिलीफ एंड असम्पशन निकालने हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम एनोटेशन को क्या करेंगे, उनको हम तरतीब देंगे ना जब, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो फिर होता है इन्वेंट्री, यानी जो हमारा मकसद होगा ना, हमने एनोटेशन तो करनी होती है ना। एनोटेट तो हमारा पहला स्टेप होता है रीडिंग का। उसके बाद हमने देखना है कि हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं, हमने जिस मकसद के लिए करना है हमने एनोटेशन के अंदर से हमने चीज़ें लेनी है जो हमें ज़रूरी होगी, फिर हम उनकी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम टेकिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात आगे बताई हुई है, ठीक है। ये देखिए उन्होंने बताया भी हुआ है कि यानी व्हेन यू टेक द इन्वेंट्री you make various kinds of lists to explore patterns of meaning you find in the text, ठीक है। यानी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए जो होता है ना वो उसको आप इन्वेंट्री करना चाहते हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखें कि कोई भी जो टेक्स्ट होती है ना, कोई भी यानी वेदर इट इज़ अ नावल और ड्रामा या कोई स्पीच होती है, कोई लेटर होता है या कोई भी चीज़ होती है, ठीक है। उसका एक स्ट्रक्चर तो होता है ना, उसके अंदर ज़ाहिर एक स्ट्रक्चर आपने तलाश करना होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बिल्कुल वाज़ह नहीं होता, बल्कि स्ट्रक्चर के लिए आपको व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट यू हैव टू डू द क्रिटिकल रीडिंग, ठीक है। आपको मतलब बड़े क्रिटिकल रीडिंग का आपने एनोटेशन कर ली, फिर आपने ये भी काम कर लिया, उसके बाद आपने टेक्स्ट का स्ट्रक्चर समझना है कि टेक्स्ट में मिसाल के तौर पर कैसे राइटर अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, किस तरीके के साथ फिर अपने टॉपिक पर डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। किस तरीके के साथ एग्जाम्पल के साथ कर रहा है, फैक्ट्स के साथ कर रहे हैं, आर्गूमेंटेशन के साथ कर रहे हैं, किस तरीके के साथ यानी अपना जो मेन थीमेटिक कंसर्न है ना वो कैसे बढ़ा रहा है। जैसे देखिए मार्टिन लूथर की आपने आई हैव अ ड्रीम पढ़ी हो, तो वो देखा ना शुरू से वो कितना एक बड़ा अट्रैक्टिव अंदाज से वो कहता है ना कि आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए वो कैसे कैसे अपनी बात को बढ़ाने के लिए बड़ी खूबसूरत इमेजरी, बड़ी खूबसूरत किस्म के सिमिलीज, मेटाफर्स, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है। तो यानी इसके मैं पहले तो वो इंट्रोड्यूस करवाएगा ना, फिर इसके बाद आगे टॉपिक को डेवलप करेगा। तो डेवलप वो मुख्तलिफ अब हमने व्हाट वी नीड टू डीज दैट कि हमने उसको उन पॉइंट्स को निकालना है कि किस तरीके के साथ उसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। उसने डेवलप कैसे किया, अब जैसे देखें ना उन्होंने बताया हुआ कि आउटलाइनिंग क्या होता है, ठीक है। ये देख लें कि आउटलाइनिंग इज एन स्पेशली हेल्पफुल रीडिंग स्ट्रेटेजी फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ रीडिंग, ठीक है। यानी रीडिंग का जो स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे देखें इसकी मिसाल आ गई, हम प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे देखें ये उन्होंने अपनी आउटलाइन बनाई हुई है, ये जो मुसन्निफीन है इस किताब के, तो उन्होंने बताया कि यानी उन्होंने एनोटेशन करके फिर देखें ये पॉइंट नंबर 1 लिखा है, उसके बाद ये यानी बता दिया कि पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर ये बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ फिर ए उन्होंने बता दिया है, ठीक है, ए के अंदर ये बात हो रही है। यानी उसके जो अपने अल्फाज है उसको उन्होंने ना कूट कर लिया, एनोटेशन से लेके ना अल्फाज को तो कूट कर। अब इसके बाद देखिए ये रफ आउटलाइन है, दिस इज़ नॉट अ गुड आउटलाइन बाय द वे, ठीक है। ये उन्होंने आपको स्टेप बता रहा है कि यानी रफ आउटलाइन इस तरीके से तैयार की जा सकती है। इसके बाद देखिए इसको नीट उन्होंने कैसे किया, आप कभी इसको देखिए, ये देखिए रफ आउटलाइन कितनी लंबी है, ठीक है। अब इतनी लंबी तो बिल्कुल यू नो कि दिस इज़ क्वाइट अननेसेसरी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ठीक है। अब इसको देखें उन्होंने ये नीट किया है। अब जैसे देखिए नीट के अंदर 10 पॉइंट्स निकाले हैं। पहला पॉइंट क्या है कि व्हाट मॉडरेट ब्लैक वाइट मॉडरेट्स ब्लॉक प्रोग्रेस, पहला पॉइंट है जिसके अंदर व्हाट द मॉडरेट्स डू नॉट अंडरस्टैंड। देखिए उन्होंने ये 10 पॉइंट निकाले हैं, यानी मरकजी पॉइंट, समझे कि उसका जो क्रक्स है ना सारे का सारा वो उन्होंने 10 पॉइंट्स को निकाल दिया, ये उसकी आउटलाइन है। अब अगर आप इसको मतलब उन्होंने स्ट्रक्चर इसका समझ लिया कि इस तरीके के साथ देखें, पहले में ये उन्होंने बात कर रहा है, फिर उसके बाद ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, यानी इस तरीके के साथ जो होता है वो उसको यानी एलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका था आउटलाइनिंग का, ये बड़ा एक इफेक्टिव मेथड है एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग। जब आप एडवांस राइटिंग करते हैं तो उसके लिए भी ऐसे करना होता है। एडवांस राइटिंग के लिए यू नो वेरी वेल दैट इन ऑर्डर टू बी अ गुड राइटर, ठीक है, जब आप एक एडवांस राइटिंग करते हैं फिर आपको एडवांस रीडिंग भी करनी पड़ती है, आप उसके लिए मुतालिया करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत कुछ आप करते हैं। इसके बाद देखें आगे आ जाए समरी।
इस समरी का बार बार लफ्ज़ आएगा। देखिए समरी का जो होता है ना, ये देखो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये समरी को एक्सप्लेन कैसे उन्होंने किया है, ये देखें, ठीक है। कहते हैं अ समरी इज़ रिलेटिवली अ ब्रीफ रीस्टेटमेंट प्राइमरली इन रीडर्स ओन वर्ड्स ऑफ द रीडिंग मेन आइडियाज़। देखिए जो रीडिंग के अंदर मेन आइडियाज़ है ना, अब जैसे मार्टिन लूथर की स्पीच थी, ये लेटर था, अब इसको आपने समराइज करना है। अब समरी की लेंथ वेरी करती है। देखिए आमतौर पर रवायती तौर पर तो यही कहा जाता है कि जो समरी होती है उसकी लेंथ 1/3 होती है, यानी जो मेन टेक्स्ट होती है उसका 1/3 होती है। लेकिन ये कोई मैथमेटिक्स का असूल नहीं है। इट वेरीज फ्राम पर्पज़ टू पर्पज़, इट वेरीज फ्राम पर्सन टू पर्सन, यानी हमारा मकसद क्या है उससे वेरी करेगी ना। अब अगर हमारा मकसद होगा इसको थोड़ा और मेन पॉइंट्स को थोड़ा एलेबोरेट करना, तो यकीनन समरी बड़ी भी हो सकती है, अगर होगा छोटा तो वो छोटी भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पर्पज़ पर डिपेंड करते हैं कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कर रहे हैं, आप किस तरह कर रहे हैं, आप एक थीसिस लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कर रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी जिस तरह की रिक्वायरमेंट को मिले तो आप उसको समराइज के सब, लेकिन समरी होनी कैसे चाहिए, समरी ऐसी होनी चाहिए कि यानी उसको पढ़ने के बाद ना, ठीक है, समरी फर्ज करें अगर एक जुमले में है या 10 जुमलों में है, तो उसको पढ़ने के बाद जो मेन आइडिया होता है ना उस सारे का सारा, वो आपके यानी समझ आ जाना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पर कि आप इसकी अगर समरी करते हैं, आप इसको समराइज करते हैं, तो रीडर अगर पढ़े तो रीडर को जो होता है ना, वो दूसरा अगर कोई बंदा पढ़े तो उससे इस आर्टिकल समझ आ जाए कि इन किसके मुतल्लिक है, ठीक है। ये होता है समरी करना, ठीक है। समरी अपने आप जैसे देखें उन्होंने ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इन्होंने करके भी दिखाई है। देखें ये छोटी सी इन्होंने 2 पैराग्राफ के अंदर उन्होंने इसे समराइज कर दिया, ठीक है। अब आप ऊपर में देखा आपने कि कितनी लंबी स्पीच है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लेटर, तो स्पीच नहीं लेटर है, ठीक है। उसको उन्होंने छोटा सा करके समराइज कर दिया। तो देखिए बिल्कुल सिंपल वर्ड में, किंग एक्सप्रेसेस हिज डिसअपॉइंटमेंट विद वाइट मॉडरेट्स हु बाय अपोजिंग हिज प्रोग्राम्स ऑफ नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन हैव बिकम अ बैरियर टू द प्रोग्रेस टुवर्ड रेशियल इंजस्टिस। अब देखिए उन्होंने बिल्कुल सादा ज़बान के अंदर ना उसको ये नहीं बताया। अब इसका मतलब कि हम अगर इसी को पढ़ लेना इतने को, ठीक है, तो देन वी वुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड इन द टेक्स्ट, ठीक है। ये होता है समरी करना, ठीक है। अब समरी के बाद अब देखें ये पैराफ्रेज क्या होता है। अब देखिए पैराफ्रेज का मतलब, कि पैराफ्रेज का मतलब उन्होंने लिखा हुआ है, ये देखें, अगर ये इसको बात करते हैं, ये देखते हैं, कहते हैं पैराफ्रेज इज रीस्टेटिंग अ टेक्स्ट यू हैव रेड, ठीक है, बाय यूजिंग मोस्टली योर ओन वर्ड, ठीक है। इट कैन हेल्प यू टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द ऑब्सक्योर और एम्बिगुअस पैसेजेस, ठीक है। अब पैराफ्रेज का मतलब देखें, समरी और पैराफ्रेज में फ़र्क होता है। समरी भी अपने अल्फाज में होते हैं, लेकिन समरी का मतलब मेन आइडियाज़ जो होते हैं ना, मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बस बात करना, ठीक है। उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं पैराफ्रेज, समरी करना, ठीक है। तो पैराफ्रेज का मतलब होता है जो मुश्किल अल्फाज होते हैं, मुश्किल अल्फाज के अंदर यानी जो मुश्किल जुमले होते हैं, मुश्किल जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस को जब हम करते हैं ना, उन सेंटेंस को अपनी ज़बान में, सादा ज़बान में लिख देते हैं, उनको पैराफ्रेज कहते हैं। पैराफ्रेज में हम कमों कास्ट नहीं करते। याद रखें समरी जब हम लिखते हैं, समरी में हम कम करके लिखते हैं ना, तो पैराफ्रेज में उतना ही लिख देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको सादा सी मिसाल बताते हैं। ये एक जुमला है कि ही प्रूव्ड हिज इनोसेंस, ये एक जुमला है, ठीक है। अब हम इसके पैराफ्रेज कर सकें, ही प्रूव्ड डैट ही वाज गिल्टी, ठीक है। हमने किया क्या है कि हमने एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दिया है, ठीक है। ये इसको ज़्यादा एलेबोरेट कर देंगे। या जैसे मिसाल को हम कहते हैं कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, हम इसको ऐसे पैराफ्रेज, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यानी इसका मतलब पैराफ्रेज का मतलब होता है हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यानी उनकी जो मुश्किल जो होती हैं चीज़ें उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये पैराफ्रेजिंग होती है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए पैराफ्रेजिंग के बाद आता है सिंथेसाइजिंग। ये बहुत अहम है। आप अगर अपना कोर्स आउटलाइन देखें ना, उसमें सिंथेसाइजिंग, समराइजिंग, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पे कि आपने इसको पढ़ा, मार्टिन लूथर की इस लेटर को पढ़ा। अब इस लेटर के अंदर ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हों कि मार्टिन लूथर कौन है, वो कहाँ से आया, वो उसकी अहमियत क्या थी, वो उसने क्यों स्पीच लिखी, कब लिखी, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब आपने सर्च तो करनी होगी। सर्च कर आप कैसे करेंगे, इसको सर्च कर, फिर इसके बाद ये भी आप देखेंगे कि मार्टिन लूथर की ये जो स्पीच है, ये जो लेटर है, इसके ऊपर बाकी लोगों ने पढ़ी होगी, लोगों ने लिख के इसके ऊपर रिएक्शन तो दिए होंगे ना, अखबारात के अंदर शाया हुए होंगे, टॉक शो में इनके ऊपर बात हुई होगी, उनके ऊपर किताबें लिखी गई होंगी, ठीक है। इनको हम कहते हैं, इनको अब आपने क्या करना है, जब आप क्रिटिकल रीडिंग करते हैं तो आपने ज़ाहिर इसके साथ और भी तो रीडिंग मिलानी है ना, ठीक है। अब आपने उन रीडिंग के अंदर से जो जितना मवाद आपने तलाश करना है अपने मकसद के लिए, अपने पर्पज़ के लिए, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करते हैं, उसको जब हम यानी एक जगह इकट्ठा करते हैं ना, एक तरतीब के साथ जोड़ देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे कि मैं कहता हूँ कि मैंने ना एक अपने उस्ताद से
दूसरा जो होता है यूट्यूब के लेक्चरों से, और तीसरा जो होता है मैंने एक किताब से, और चौथा जो होता है मैंने मुख्तलिफ अखबारात के कालम से जो होता है ना मैंने मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब मुझे ज़ाहिर उसके आइडियाज़ मिले। अब मैंने क्या करना, सारे मवाद को जो एनालाइज मैंने किया था उसका अब सिंथेसाइज करना है। ठीक है, उसे तरतीब देनी है, इसे हम सिंथेसिस कहते हैं। जैसे देखें आप, ये बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, बड़ा आसानी के साथ। ठीक है, लिखा हुआ है कि सिंथेसाइजिंग इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन ग्लीन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, ये आगे उन्होंने डिटेल के अंदर भी लिखा हुआ है कि हम जब डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम उसको जब एक यानी तरतीब देते हैं, एक सिंथेसाइज करते हैं, उसमें सिंथेसिस के हम कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे देखें, ये देखें उन्होंने सिंथेसिस कैसे किया हुआ है, ये देखिए ज़रा कि ये देखें देखें ये लिख के ना सारे का सारा, ये इसको ज़रा नोट करें, इतनी चीज़ को आप नोट करें, ये मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, देखिए इसमें इन्वर्टेड कामास में लिख के फिर इसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर ये साइटेशन की, इसका मतलब है कि ये जिस यानी राइटर्स ने क्या किया है कि यानी मवाद ले के ना ये कोटेशन उन्होंने किसी और किताब से, किसी कालम से या किसी जगह से लिया है, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर इसका सोर्स मेंशन किया है। इसे साइटेशंस कहते हैं। रिसर्च की ज़बान में साइटेशन का मतलब होता है उस किताब का बताना, उसके ईयर पब्लिकेशन का बताना, उसके पेज नंबर का बताना, उसके मुसन्निफ का बताना। ठीक है, ये साइटेशन होती हैं। जब हम रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, एमफिल में या पीएचडी में लोग लिखते हैं, तो उसमें साइटेशन वगैरह की जाती हैं। ठीक है, ये हो जाती है, ये होता है सिंथेसिस करना। ठीक है, साइटेशन के साथ। इसके बाद आगे आता है कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। कॉन्टेक्चुअलाइजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अगर आपने लिसानियात लिंग्विस्टिक्स में आपने प्रैग्मेटिक्स पढ़ी है, तो प्रैग्मेटिक्स क्या कहती है कि जो हम अटरेंसेस बोलते हैं, लिखते हैं ना, वो आइसोलेशन में नहीं बोली जाती, बल्कि उसका एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका पूरा एक पस मंज़र होता है। अब जैसे देखें, अब इसको कॉन्टेक्चुअलाइजिंग क्या चीज़ होती है, वो कहते हैं कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। ठीक है, इधर से हम इतने से हम इसको ज़रा करने की कोशिश करते हैं। ये देखें डेफिनेशन है, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग क्रिटिकल रीडिंग स्ट्रेटेजी दैट एनेबल यू टू मेक इन्फ्रेंसेस, ठीक है, अबाउट अ रीडिंग हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट टू एग्जामिन द डिफरेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट एंड योर ओन। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, यानी इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर क्रिटिकली अबाउट दिस टेक्स्ट, व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट कि यू हैव टू गो इनटू द टाइम, ठीक है, इन विच ही वॉज राइटिंग, यानी ही वॉज राइटिंग। ठीक है, मतलब आप देखेंगे मार्टिन लूथर किस हालात में लिख रहा था, उस वक्त अमेरिका के हालात क्या थे, सिविल राइट मूवमेंट क्या थी, ब्लैक लोगों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कैसा हो रहा था, ये होता है कॉन्टेक्चुअलाइज करना। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम चीज़ों को समझते हैं ना, तो ये कॉन्टेक्चुअलाइजिंग होता है। इसके बाद बच्चों आगे आता है एक फिगरेटिव लैंग्वेज। अब आपको पता है लिटरेचर के आप ज़्यादातर तालिब इल्म जो मेरे मुखातिब है, तो लिटरेचर के तालिब इल्म ये जानते हैं कि यानी जो राइटर्स होते हैं उनका एक स्टाइल होता है लिखने का। ठीक है, वो स्टाइल के अंदर क्या करते हैं, फिगरेटिव ज़बान इस्तेमाल। फिगरेटिव ज़बान में ज़ाहिर है एक आम ज़बान होती है, एक फिगरेटिव होती है। फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर वो सिमिलीज, मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशन, सिनेक्टिकी, सिम्बोलिज्म, इमेजरी, ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपको ऑलरेडी इस चीज़ का पता है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, मेटाफर्स को, सिमिलीज को क्यों करते हैं। ठीक है, ये होता है इसकी जो फिगरेटिव हैसियत होती है। इसके बाद बच्चों आगे अगला जो कंसेप्ट आता है ना, ठीक है, वो तो लुकिंग फॉर पैटर्न्स ऑफ अपोजिशन। देखिए अपोजिशन क्या होती है, विलियम ब्लेक एक पोइट है जो है रोमांटिक पोइट है, तो आप उसके बारे में जानते हो। वो कहता है कि विदाउट कॉन्ट्रेरीज देयर इज़ नो प्रोग्रेशन, के बगैर इख्तलाफात के प्रोग्रेशन मुकम्मल नहीं होती, तरक्की का रास्ता रुक जाता है। तो इसीलिए राइटर्स भी क्या करते हैं, अपनी जब वो टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो उसके अंदर उन्होंने पैटर्न्स ऑफ अपोजिशन लिखे होते हैं। पैटर्न्स ऑफ अपोजिशन क्या होते हैं कि जो कि ये देखें, इसमें मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए जैसे इस स्पीच के अंदर उसने लिखा हुआ है कि मॉडरेट है वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट है, ऑर्डर है वर्सेस जस्टिस है, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन है वर्सेस पैसिव, ठीक है, एक्सेप्टेंस है, एक्सप्रेशन। ये देखिए ये सारे इसका मतलब है कि यानी इसमें कंट्रास्ट आपको नज़र आ रहा है। कंट्रास्ट के अपोजिशन के ज़रिए क्या होता है कि एक आइडिया ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। मतलब मिसाल के तौर पे आपने अगर जस्टिस की वैल्यू को बयान करना है ना, तो आपने यानी लोगों की ये तो बयान करेंगे ना कि यानी लोगों को साथ इनजस्टिस कितना ज़्यादा हो रहा है, यानी विदाउट डिस्क्राइबिंग इनजस्टिस यू कैन नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट जस्टिस। ठीक है, तो ये जो पैटर्न होते हैं ना अपोजिशन के, ये असल में जो एक टेक्स्ट होती है उसके थीमेटिक कंसर्न को बढ़ाने में मदद देते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि आप उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर ये अपोजिशन के पैटर्न ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसके तो बिल्कुल वो थीमेटिक कंसर्न रुक जाएंगे ना। आप ड्रामाज में देखें, मूवीज़ में देखें, तो उसके अंदर जो किरदार होते हैं वो आप एक दूसरे के अपोजिट नज़र आते हैं, अपोजिशनल पैटर्न नज़र आपको आते हैं। ठीक है, दिन और रात का पैटर्न नज़र आता है। इसका मतलब होता है कि ऑल दिस थिंग दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द थीमेटिक डेवलपमेंट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, ये होती है। अब इसके बाद आगे इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा,
चूँकि इस फिर काफ़ी लेंथ हो जाएगी, लेक्चर हो जाएगा। इसके बाद देखें कि हमारी जो एसम्पशन रिफ्लेक्टिंग ऑन चैलेंजेस, ठीक है, टू योर ओन बिलीव्स एंड वैल्यूज़। देखिए जब आप टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं ना, बड़ी चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगे कि जो कि आपके बिलीव्स होंगे ना, आपके जो अकायद होंगे, आपके जो मतलब एक सेट पैटर्न आपने बना लिया होता है, उसको चैलेंजिंग आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अब उसमें ये कहते हैं कि उसमें आपको सब्र के तहम्मुल से काम लेना है। अब उसमें ये नहीं होता कि आपने रिएक्शन बड़ा सख्त किस्म का दिखा देना, आपने कहना ये तो मेरे फला मतलब अकीदे के खिलाफ है तो मैंने इसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ना है, उसमें उसको फिर भी आपने क्रिटिकली आपने थाट करना है, उसके बाद थिंक करना है, ठीक है। ये बात है। अब आगे एंड वाली बात आती है, इसके कहते हैं लॉजिकल फैलिसिस, ठीक है। देखिए टेक्स्ट के अंदर जब एक टेक्स्ट राइटर लिख रहा होता है ना, तो आप उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मंतकी मगालते होते हैं, ठीक है, वो रह जाते हैं। यानी उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके अंदर इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। बास जो होता है ना, उसके अंदर हिस्ट्री जनरलाइजेशन की जाती हैं। बास जो होते हैं उसके अंदर स्लिपली स्लोप होती है। बास के अंदर स्टारमैन टेक्निक होती है, ठीक है। ये डिफरेंट टेक्निक्स है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल फैलिसिस जो होती हैं, ठीक है। ये जब मैं आपको आगे बताऊंगा लॉजिकल फैलिसिस क्या होती हैं और वो किस तरह से एक टेक्स्ट के अंदर आते हैं और टेक्स्ट के अंदर अपना एक इन्फ्लुएंस रखती हैं, इसके बारे में फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप अगर आप इसको समझेंगे, थोड़ा सा इसको आप सुनेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, तो ये आई होप कि दिस विल बी बेनिफिशियल फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच।